if you are going at peak winter time, it is like you are going to some else in the Fairyland kind of thing. Yeah. That was heavy snowfall. Like I can't stand stable. तो मतलब कि अब हमें व्हाइट कलर के अलावा कोई कलर ही नहीं दिख रहा था वहाँ पे, ऐसा हो गया था। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे गड्ढा कर करके खत्म कर दूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं था वो। So actually it's not day. It's midnight. आपकी स्पाइक्स जब बर्फ गिरता है ना, कुर 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 की जो साउंड आती है। सनराइज की जब भी बात आ रही है किसी भी ट्रैक में, so that is केदारकंठा. Okay, good evening, Good Jai Hind evening. everyone. So it's my pleasure that we are recording second podcast today. So we decided to share the experiences, share what that track is all about. So being from the organizer's perspective, or being from the participants' perspective, being from the volunteers' perspective, how the track is being organized, what all the things that it has to offer, ये सारी चीज़ों को एक ही जगह पर हम डिस्कस करने का ट्राई कर रहे हैं. So again, welcome to this podcast, guys. So let us start with some introduction. Myself Rishiraj. I work as a managing trustee at Invincible, and since 2013, since its inception, I'm connected with this organization. Bhati? So Jai Hind everyone. My name is Jaipal Singh Bhati, and currently I look after the operations. जितने भी Invincible के operations है pan India में, so I look after that. And I am with Invincible since 2017, so it's been almost like 8 years now. So myself Akash, and I live in basically currently I'm living in the Ahmedabad, but origin मेरा उत्तर प्रदेश का है. इधर मैं जॉब करता इसलिए रहता हूँ, और लाइक इसी साल से मैंने इनविंसिबल के साथ ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया है. एंड So you visited Kedarkantha this year, right? I visited in the January month Okay. to Kedarkantha, and yeah, that was amazing. Hello guys, I am Sakshi Tiwari and I'm a software developer. And I lived here currently, and I joined Invincible from 2023 December was my first in camping that time. Mhm. So since that time I did many camping and also trek. This year I did 2 trek this year, like Kedarkantha and Valley of Flowers, and many have to go like in the way like that. Wonderful, wonderful. So, like Kedarkantha is definitely the we Iconic. can say the most popular track currently in India. Now, the some similar tracks are also rising, like Brahmatal and Yes. Kauri Kauri Pass. You know, these tracks are picking up slowly, but definitely Kedarkantha is the most visited track in Indian history. That's for sure. Yes. And when it comes to like winter snow trekking, then it is the heaven. Definitely, there is no doubt about it. Many times people also like mix two things, that is Kedarnath and Yes. Kedarkantha, Yeah. because of its common name Kedar, you know. Yes. Kedar is the common. So that is one of the reason कि काफी सारे लोग हैं वो इसके और ज़्यादा attract हुए हैं, because Kedarnath become so popular and so people started going to Kedarkantha, and ये एक benefit इस ट्रैक को definitely मिला है. हालांकि दोनों अलग अलग Yes, रीजन में yes, हैं, correct. दोनों के रूट्स अलग अलग हैं. एक यात्रा है कम्प्लीटली, एक कम्प्लीटली ट्रैक है, माउंटेन पीक है. इट्स टोटली डिफरेंट, बट इट हैज़ बिन वंडरफुल ट्रैक. डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट विंटर ट्रैक्स इन इंडिया. पॉपुलैरिटी की अगर बात साइड में करें, फिर भी ट्रैक के फीचर वाइज भी दैट इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट tracks currently active in India. So Bhati, like you are the like head of the operations, so you look after the operations. So please brief about the schedule, how it's going. Like we can start from Ahmedabad, so please brief about it. Okay, so basically अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ, so we have two options. ट्रेन में भी दो ऑप्शंस रहते हैं, सिंस इट्स अ लॉन्ग जर्नी अगेन. सो एक जो रहता है, जो डायरेक्ट ट्रेन का हम ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम अहमदाबाद फर्स्ट डे, दैट इज़ द योगा एक्सप्रेस, कि जो डायरेक्टली हरिद्वार आपको ड्रॉप करती है ऑन दी सेकंड डे, इन द सेकंड डे आफ्टरनून. इफ़ इन केस काफ़ी बार ऐसा रहता है कि बिकॉज इट्स अ लॉन्ग रूट एंड हरिद्वार इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस, सो वहाँ पे काफ़ी बार ऐसा रहता है कि आपको ट्रेन टिकट्स अवेलेबल नहीं मिलती है. सो दैट एट दैट पॉइंट वी हैव अ सेकंड ऑप्शन. सो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो वाया दिल्ली होके आते हैं. सो व्हाट वी डू इज़ वी डू अ ट्रेन टिल दिल्ली, दैट इज़ आश्रम एक्सप्रेस. ओके, जो आपको दिल्ली जो है अर्ली मॉर्निंग पहुँचाते हैं. एंड देन अगेन आपका दोपहर को एक कनेक्टिंग ट्रेन रहता है फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार.
तो जो आपको हरिद्वार जो है शाम को पहुंचाता है. सो दीज आर द टू ट्रेन ऑप्शन. इन बोथ द केसेस यू आर रीचिंग हरिद्वार ईदर इन आफ्टरनून और इन द इवनिंग. ओके. एंड द सेकंड डे जो रहता है वो स्पेसिफिकली हम हरिद्वार में ही फ्री टाइम देते हैं, ताकि आप लोग गंगा आरती जो है वो एक्सपीरियंस कर पाओ. हरिद्वार के जो मेजर साइट सीइंग के प्लेसेस है, जैसे चंडी देवी हो गया, मनसा देवी टेम्पल हो गया, ओके, हर की पौड़ी हो गया, ये चीज़ें आप विजिट कर पाओ. एंड देन दी थर्ड डे जो रहता है आपका, वो वेयर दी मोस्ट ऑफ दी ग्रुप जो है वो आपको मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है इधर दिल्ली टू दिल्ली वाला पैकेज लेते हैं, या फिर डायरेक्टली सम आर कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू दी हरिद्वार. सो दैट इज़ द डे जब आपका पूरा का पूरा ग्रुप आपके साथ में आ जाता है. सो हरिद्वार से हम अर्ली मॉर्निंग जो है निकलते हैं फॉर दी बेस कैम्प दैट इज़ इन सांखरी. तो सांखरी करके एक जगह है. Yes. ओके. ओवरऑल इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर ऑफ, और पूरा का पूरा जो अगर आप रास्ता देखेंगे स्पेसिफिकली इन द विंटर टाइम्स, तो एक टेरेन चेंज जो है वो आपको सिटी से आप रॉ विलेज की तरफ जा रहे हो, वो भी कोई कोर उत्तराखंड विलेज आप जा रहे हो, तो ऐसा आपको फील होगा एक. और अगेन बीइंग अ वेरी लाइक रॉ विलेज, सो जैसे ही आप सांखरी पहुंचोगे तो आपको वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं मिलेगा. मतलब इट इज़ नो नेटवर्क जोन. ओके. पुरोला करके एक जगह है ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर बिफोर सांखरी. वहाँ से आपका इंटरनेट जो मतलब नेटवर्क जो है वो चला अभी जाता तो है. आई थिंक वाईफाई कनेक्टिव वगैरह Yes. So connectivity वगैरह again, हो at चुकी our है. base camp we do have Wi-Fi, but connectivity is not that good compared to the like urban areas. Still अभी जियो का कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा हो गया है. एट द बेस कैम्प इट इज़ कमिंग नाउ. लाइक आई विजिटेड इन फेब दिस ईयर, और तब जियो का कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा आ रहा था, बीच बीच में काफ़ी अच्छा आया था. एयरटेल का भी कहीं कहीं पे कनेक्टिविटी अच्छा आ रहा है. एंड BSNL ऑफकोर्स उसका तो नेटवर्क वहाँ पे पहले से ही है, लेकिन अगेन यू कैन मतलब आप मूवी नहीं देख सकते वहाँ पे, बट यू कैन एटलीस्ट मेक अ कॉल टू समवन. रील रील देख सकते? नहीं, रील भी नहीं, रात को आपको जगना पड़ेगा उसके लिए. सो दैट इज़ दी थर्ड डे हम यूजुअली पहुँचते हैं. तो काफ़ी बार ऐसा रहता है कि अगेन डिपेंड अपॉन द वेदर एंड ट्रैफिक एंड ऑल. सो अगर हम दोपहर को पहुँच जा रहे हैं, सो यू गाइज गेट अ वेरी गुड टाइम कि जब आप सांखरी का जो गाँव है वो आप विजिट कर पाओ. इफ़ यू हैव सिंस यू ऑलरेडी डिड दी केदारकंठा ट्रैक, तो आपको आइडिया होगा कि सांखरी इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज इटसेल्फ. मतलब Yes. आप सांखरी में ही 2-4 दिन रुक सकते हो, वैसी वो जगह है. यू विल मतलब आपको वहाँ पे लोकल्स मिलेंगे जो अपना So like वो. this Kotgaon, this place where we have the base camp. Yes. है ना? So So how far it is from Sangri? So Sankri से this is 4 kilometers. Okay. So before Sankri, the base camp is at the village called Kotgaon. Yes. Okay. So वो 4 किलोमीटर पहले है, and that itself is a whole Sangri range. Yes. हाँ सांकरी रेंज वाला ही पूरा है रहता है. और सांकरी itself is a very like सिमिलर टू नगर, या फिर हम मनाली की बात कर सकते हैं. सांकरी से भी काफ़ी सारे ट्रैक्स जो है ना वो शुरू होते हैं. जैसे स्पेसिफिकली हरकीदुन इज़ वन ऑफ दी लाइक समर में काफ़ी फेमस ट्रैक है जो सांकरी से ही शुरू होता है. सो दैट स्पेसिफिक डे इज़ फॉर एक्लेमेटाइजेशन. ओके. जैसे ही आप सांकरी पहुँचे तो जो सीनियर इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो आपका फॉलो इन लेते हैं वहाँ पे. दे टेल यू अबाउट द जियोग्राफी. बाकी आप एक्लेमेटाइज कैसे हो सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे. दे लाइक अगेन इंट्रोड्यूस विद दी ट्रैक. ओके. कि आपका ट्रैक कैसे रहने वाला है, आगे के 4 दिन का जो आपका ट्रैक रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा. पैकिंग के बारे में आपको गाइड करेंगे और बेहतर तरीके से. काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे ट्रैकर्स जो है वो कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं. ओके. एंड वी हैव अ कैंपर स्टोर एट आवर कोटगांव बेस कैम्प एज वेल. सो वहाँ से भी वो चीज़ें जो है ले सकते हैं, लाइक जैकेट हो गया, शूज़ हो गए, ओके, पॉन्चो हो गए. ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे रेंटल में प्रोवाइड करते हैं. एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो है सेलेबल भी रहता है, जैसे सॉक्स हो गया, वन टाइम यूज़ ग्लव्स हो गए, दैट काइंड ऑफ थिंग्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर थर्ड डे. एंड देन वी मूव ऑन टू अवर ट्रैक. सो अगेन दो पहला दिन जो रहता है दैट इज़ अ क्वाइट लॉन्ग ट्रैक. Yes, it is. ओके. फर्स्ट डे जो रहता है वो अप टू जुडाका ताल रहता है आपका, जो जिस दिन हम सांकरी से ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर का ट्रैक करके जुडाका ताल के पास में हमारा जो कैंप साइट है, एडवांस कैंप हम कह सकते हैं उसको भी. ओके. सो वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे आपका स्टे रहेगा टेंट्स के अंदर. ओके. देन दी अगेन दी जो पूरा का पूरा सांकरी वाला जो रेंज रहता है यू कैन सी इट फ्रॉम देयर. ओके. देन दी जुडाका ताल इटसेल्फ आप विजिट कर रहे हो. तो इफ यू आर गोइंग एट पीक विंटर टाइम, सो यू विल सी लाइक एकदम फ्रोजन जो जुडाका ताल जो पूरा का पूरा Yes. लेक है. यू कैन एक्सपीरियंस दैट. पीपल मतलब हाईलाइट है एक केदारकंठा की अगर हम बात करें तो, कि जुडाका ताल जो है वहाँ पे ही लोग आप देखोगे तो काफ़ी सारे मैगी वाले स्पॉट्स भी है वहाँ Yeah, पे बने हुए. that was actually a heaven. या Like I can say in one word. if it you are is going at heaven. peak winter time, it is like कि you are going to somewhere else in the Fairyland kind of thing. Yeah. Yes. Yeah.
That is like unbelievable thing which I experience in there. And in on Kedarkantha, I can say each moment is so memorable for me, because in next spot you see something new, and Yeah. you experience something better than before and all, and every time you have motivation to go over Yes. and over True. and Being a very popular trek, एक ये भी बेनिफिट रहता है कि आप कहीं पे भी जा रहे, देयर अदर ट्रैकर्स आल्सो, ओके, Yes. अलोंग विथ योर इंस्ट्रक्टर्स हु आर लाइक, उनको एग्जॉस्ट देखने के बाद आपको यू फील लाइक नहीं, मेरे में ज़्यादा थोड़ा एनर्जी है, मैं Yes. अभी जाऊँगा. ओके, देन अगेन मल्टीपल कैंप्स वहाँ पे रहते हैं, सो यू विल ऑल्सो फाइंड लाइक कि इन्विंसिबल वाला बेस कैंप कहाँ, इन्विंसिबल का कैंप कहाँ पर है, Exactly. अच्छा यहाँ पर है, तो ओके ओके हम पहुँच गए वैसा. एंड स्पेसिफिकली ऑन द डे 4th, मतलब जब आप जुडा का ताल से जब आप केबीसी के लिए जा रहे हैं, दैट इज Yes. अगेन Very tough. हाँ, दैट इज, हाँ, in terms of distance it is not that like Long. far, हाँ, Hmm. but specifically अगर व्यूज़ की हम बात करें, सो केदारकंठा का जो बेस कैंप है, वहाँ से आपको पूरा का पूरा एक जो रेंज दिख रहा है, केदारकंठा का पूरा, मतलब सांकरी वैली का पूरा जो रेंज दिख रहा है, दैट इज अ पैनोरामिक व्यू. और वहाँ से जब आप सनसेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, I that is think something that like almost all the participants no, I think what in that perspective I was unlucky for that, because I faced very heavy snowfall. That is also my dream. So Mhm. like yeah, that was heavy snowfall. Like I can't stand stable that time, oh, and in that weather we did the Summit. summit. लाइक Okay. हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं स्नोफॉल वगैरह देखूं, ऐसा ठीक है. Hmm. बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं गया था तो उस समय ऐसा था कि स्नोफॉल होगी और ज़्यादा होगी तो आपकी पीक जो है वो वहाँ पे आप नहीं नहीं देख जा पाएंगे. पाओगे. ठीक है, आपको अब वापस आना पड़ेगा, आपको जुड़ा ताल से भी वापस आना पड़ सकता है. तो हम लोग ऐसा था कि नहीं, एक बार तो चाहिए स्नोफॉल. और अनफॉर्चुनेटली मैंने स्नोफॉल कहीं नहीं देखा, लेकिन मैंने जो अपना हमारा सनराइज था वो हमने जो देखा ना, एंड दैट वाज अमेजिंग. बिकॉज ऑफ स्नोफॉल नहीं हो रहा था, Hmm. इसलिए हमने वो सनराइज वगैरह वो प्रॉपर देख लिया. लेकिन अगर स्नोफॉल होता तो अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं देख पाते. वही है कि अगर हम कुछ पा रहे Like हैं you are talking about sunrise from the peak summit. यस सनराइज फ्रॉम द पीक आई एम टॉकिंग अबाउट. So So brief the- में मतलब देखे ओवरऑल एक बार शेड्यूल को, तो like you start from Ahmedabad on first day, you reach Haridwar on the day 2, Mhm. then you do the night stay at Haridwar. Day 3 you start early from Haridwar and you reach to Kotgaon, that is Sankri range. Mhm. Okay, and the next day, that is day 4. Hmm. And on the 4th day you start from Sankri to Sankri to Judakatal. Judakatal. Yes. And you camp there. Yep. And 5th is Judakatal to To KBC. KBC. Kedarkantha base camp. camp, yes. Okay. And now it is 6th day. 6th day. So Yeah. actually it's not day. It's Yes. midnight. Yeah. It Okay. is midnight. Yeah, it is midnight actually because we start our day actually मतलब हम midnight को ही शुरू करते हैं वैसे 2-2:30 बजे के आसपास. The early we start, the better depending upon the group size हम actually शुरू करते हो. But usually we start around 2 to 3. Okay. So reason being the same कि ट्रैक जो है वो पूरा का पूरा नाइट ट्रैक है. वी आर गोइंग टू लाइक सी द सनराइज. ओके, दैट इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ द होल केदारकंठा स्नो ट्रैक. मतलब कि जो सनराइज की जब भी बात आ रही है किसी भी ट्रैक में, सो द फर्स्ट नेम दैट कम इन एवरीवन्स माइंड दैट इज़ केदारकंठा. ओके, सो हम अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं एंड वी ट्राई टू रीच द समिट बिफोर जस्ट लाइक हम सनराइज के ऑलमोस्ट 15-20 मिनट पहले वी ट्राई टू रीच द समिट एंड देन वी सी द मोस्ट मतलब ऑस्ट्रक पार्ट ऑफ द होल ट्रैक दैट इज द सनराइज. Yes. तो ऑलमोस्ट हम 7 बजे के आसपास 6:30 से 7 के आसपास सनराइज होता है. वी सी दैट सनराइज. वहाँ पे हम हमारे ट्राई कलर के साथ में एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं. Yes. ओके, वेयर वी प्रमोट दी हैशटैग क्लाइंब विद ट्राई कलर जो इनिशिएटिव है इनविंसिबल का. देन वी अगेन वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाता है कि आप फोटोज़ वगैरह खींच पाओ. ओके, देन वी कम बैक अगेन टू आवर एडवांस बेस कैंप. केदारकंठा बेस कैंप पे हम आते हैं केबीसी पे. देन वी रैप अप आवर थिंग्स, जितनी भी आपकी चीज़ें वो आप लोग लेते हैं. देन वी गो डाउन टू दी हरगांव बेस कैंप. जुडा का ताल के ही पास में एक कैंप साइट है दैट इज़ हरगांव. जो गाँव का नाम है, जगह का नाम है दैट इज़ हरगांव. सो वहाँ पे आपका नाइट स्टे रहता है. दैट इज़ दी लाइक फाइनल नाइट स्टे इन दी होल ट्रैक जो आपका टेंट में रहता है. एंड ऑन दी लाइक लास्ट डे हरगांव के बाद वाला जो दिन रहता है, आई थिंक डे 7 दैट इज़. सो उस दिन जो है हम लोग हरगांव से अगेन डिसेंड करते हैं फॉर दी सांकरी टू दी कोटगांव. ओके, सो कोटगांव पे आप जैसे ही पहुँचते हो यू हैव योर लाइक राधिका वाला डांस एंड Yes, yes. डीजे एंड गरबा एंड स्पेसिफिकली जो पूरा का पूरा जो थकान रहता है, Yes. like I have in the experienced daytime, this in thing. the afternoon. Yeah, in the afternoon once they reach
And on the first day also, like Yes. sometime we do, on the first day also हम पहले दिन ही गरबा करवा देते ताकि जो गुजरात वाला जो एनर्जी है वो ओवरऑल ट्रैक में आ जाए. एंड मैनी टाइम्स वी डू एट दी लास्ट डे ऑल्सो, क्योंकि Yes. काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स का वो थकान जो है वो गरबा की वजह से हट जाता है पूरा. सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट अवर ओवरऑल ट्रैक. और उसी दिन हम निकल जाते हैं वापस बैक टू हरिद्वार, और ऑलमोस्ट रात को 10-11 बजे के आसपास हम लोग पहुँचते हैं हरिद्वार. एंड नेक्स्ट डे यू गाइस हैव योर ट्रेन इन द आफ्टरनून, नॉट लाइक अराउंड 4 o'clock अगर आप योगा एक्सप्रेस कर रहे हैं तो. एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू वाया दिल्ली वाला पैकेज तो यू नीड टू लाइक वेक अप अर्ली. वो आपका 6 बजे के आसपास ट्रेन रहता है जो 11 बजे पहुंचाता है, और वहाँ से 2:30 बजे का अगेन कनेक्टिंग ट्रेन रहता है. सो ऑन द 9th डे यू गाइज रीच अहमदाबाद. अगेन द मॉर्निंग पार्ट में ही आप लोग सब पहुंच जाते हैं. एक एड ऑन है जो हमने इंट्रोड्यूस किया आई थिंक 2 years बैक. इट्स For बिन 2 years. Rishikesh? Yeah, Yeah. that is for the Rishikesh. Yes. Yeah. So if जब आप रिटर्न आ रहे हैं सांकरी से, okay, so there is a add-on option कि you can stay at a Rishikesh. Now being मतलब ऋषिकेश की अगर मैं बात करूँ तो that is a kind of place जहाँ पे लोग एक स्पिरिचुअलिटी प्लस थोड़ा मॉडर्न कल्चर जो है, कैफ़े कल्चर जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. प्लस ऋषिकेश अपने आप में एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है. इफ़ आई टॉक अबाउट रिवर राफ्टिंग, सो ऋषिकेश में मल्टीपल किलोमीटर्स का रिवर राफ्टिंग जो है, लाइक 8 किलोमीटर्स है, 16 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स का रिवर राफ्टिंग काफ़ी फेमस है. सो पीपल कैन लाइक एक्सपीरियंस दैट रिवर राफ्टिंग. और स्पेसिफिकली जब विंटर्स की मैं बात करूँ तो विंटर्स में जो पानी जो रहता है वो काफ़ी मतलब क्रिस्टल क्लियर वाटर यू विल सी. सो पीपल कैन एक्सपीरियंस दैट थिंग. देन बंजी जंपिंग जो हाईएस्ट, अब तो काफ़ी सारे बंजी Yes, जंपिंग many. स्पॉट्स हो गए. Okay, we specifically do with jumping heights. Reason being कि they are the oldest and the most safest, और उनके जो सारे के सारे safety parameters है, okay, that are up to the mark. Okay, so these are the two major activities जो वहाँ पे होती है. उसके अलावा वहाँ की आरती, त्रिवेणी घाट जो है वहाँ की आरती लोगों को एक्सपीरियंस करना काफ़ी पसंद है. That's why we have this were the specific reason कि जिसकी वजह से हमने एक एड ऑन पैकेज ऐड किया है जिसके अंदर हम एक दिन ऋषिकेश में उनको नाइट स्टे प्रोवाइड करते हैं. एंड देन अगेन द सेकेंड डे शेड्यूल रिमेन्स सेम. मतलब जब हम अहमदाबाद की खाली बात करते तो इट इज़ अ 9-day पैकेज, एंड इफ़ वी एड ऑन ऋषिकेश फॉर द 1 day सो वो टोटल 10 days का 10 पैकेज days का होता है. हो जाता है. Yes. एंड इफ़ यू ज्वाइन डायरेक्टली फ्रॉम सांखरी और फ्रॉम हरिद्वार सो इट इज़ अ 5 day. मतलब ओवरऑल फर्स्ट टाइम जाने वाले जो जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा तो वो चैलेंज वाला फील रहता ऑब्वियसली. होगा, लाइक कंपेयर टू डेलहौसी मनाली, कसोल मनाली काइंड ऑफ ट्रैक, क्योंकि वहाँ पर हार्डली उनका एक नाइट का नाइट स्टे टेंट में होता है ना. कंपेयर टू दैट हियर यू हैव 3 3 night नाइट्स stays. Yes. इन स्नो, क्योंकि स्नो कंडीशंस भी रहती है. सो कंटिन्यूसली 3 नाइट्स तक आप स्नो में रहते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा चैलेंज लेवल तो प्लस रहेगा. इसमें रहेगा. Yeah. सो ओके आकाश, लाइक आप जब गए थे इस ट्रैक पे, सो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू स्टिल रिमेंबर, और जो आपको सबसे फैसिनेटिंग लगी हो, या फिर वी कैन से द बेस्ट मोमेंट्स फ्रॉम दिस ट्रैक, लाइक एनी विद द काउंट 1 2 3 अगर हम बोले तो क्या क्या चीज़ें ऐसी आपकी रही? ओके, सो मेरे हिसाब से देखो, एक तो ये मेरा पहला ट्रैक था, और पहला ट्रैक होने के बाद भी मैंने सबसे पहला ट्रैक केदारकंठा चूज़ किया. चलो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं. लेकिन अब इसमें क्या था कि ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था वो आइस देखना, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं कि पहाड़ों पे आइस जमी ऐसा कुछ देखा हूँ. मेरा बहुत ड्रीम था. और जब हम करीबन साकरी पहुँचे थे तो वहीं पे हमें हल्की हल्की वो बर्फ़ की सिल्लियाँ हल्की हल्की पतली पतली कहीं कहीं पे दिखने लगी थी. उस जनवरी की बात मैं कर रहा हूँ. और उसके बाद फिर जब हम जुड़ा ताल जब हम ट्रैकिंग स्टार्ट किए, फिर रास्ते में तो फिर धीरे धीरे वो बंच ऑफ आइस दिखने लगा. फिर धीरे धीरे पूरा वाइट दिखने लगा, और वो आगे चल के पूरा स्नो फील्ड्स मतलब कि अब हमें व्हाइट कलर के अलावा कोई कलर ही नहीं दिख रहा था वहाँ पे. ऐसा हो गया था. और वो ड्रीम था समझ लीजिए. तो एक जो पूरा वो व्हाइट कलर देखना, और जब उस आइस को हाथ में ऐसे ले तो एकदम रुई जैसा, मक्खन जैसा फील हो रहा था. दैट वाज अमेजिंग एक्चुअली. और वो मतलब ऐसा था कि खत्म ही नहीं हो रहा था. मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे गड्ढा कर करके खत्म कर दूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं था. वो बहुत ही एक मोमेंट था. उसके बाद अगर मैं सेकंड मोमेंट की अपनी बात करूँ तो लिटरली वो मतलब रात में जो हमें 2 बजे उठ के हम लोग पीक पे जाने के लिए जो रात में 2 बजे उठते हैं, वो बहुत लोगों के लिए बहुत ही हॉरर हो सकता है, बहुत लोगों के लिए बहुत ही वियर्ड हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, टफ हो सकता है. बट लिटरली वो जो टाइम होता है ना, वो लाइफ टाइम इधर मेमोरी में एकदम कैच हो जाता है. क्योंकि रात में 2 बजे आप सोचो उठ रहे हो, पूरा कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिख रही है, वो है आइस.
इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। आइस इसलिए क्योंकि जस्ट बिकॉज वो वाइट है, वरना वो भी शायद नजर नहीं आती। और इस वाइट कलर में सिर्फ सारे के सारे लोग अगर वो टॉर्च ऑफ कर देना तो ऐसा लगेगा कि बस इस ब्लैक एंड वाइट, कि वो वाइट वाइट उसके ऊपर और एक ब्लैक ग्राउंड पूरा स्नो से वाइट है और पूरा- ऊपर पूरा ब्लैक। हाँ। और उसके बाद जब वो मतलब ड्रीम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए क्योंकि जब हम लोग वो स्टार्ट करते हैं, मुझे याद आ रहा है आज भी वो 5-10 मिनट जब हम चलते हैं ना, सब लोग साइलेंट रहते हैं, चुपचाप चलते हैं, सिर्फ एक चीज की आवाज आती है, आपकी स्पाइक्स जब बर्फ पिघलते हैं ना, कुर 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 की चीज साउंड आती है वो कानों में ना ऐसे सेट हो गई, कुर 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 ऐसे ऐसे, वो बहुत अच्छा लगता है। और एकदम ठंडक, एकदम यकीन मानिए, मतलब वो ट्रैकिंग करते करते वो मैं बता रहा हूँ, मैंने 3-4-5 दिन जो भी ट्रैकिंग हुई है उसमें सबसे बेस्ट मोमेंट मेरे को वही लगा। और रात में 2 बजे उठ के सुबह 6 बजे का जब आप जाके वो देखते हो, तो ये तो एक हो गया 2 बजे उठने वाला। और ऊपर से जाके जब आप वहाँ पहुँचते हो पीक पे, और हम लोग का टाइम था कुछ 6-10 पे ऐसा सनराइज का टाइम था, राइट। बट हम लोग वहाँ के थोड़ा पहले पहुँच गए थे, क्योंकि कुछ लोग तेज चलते हैं, कुछ लोग धीमे चलते हैं। तो मेरे को इतना वो था ना कि मैं तेज जल्दी पहुँचना है, मुझे एक कंपटीशन था मुझे अपने ग्रुप से कि मुझे जल्दी पहुँचना है। तो इस स्पीड में थोड़ा मैं तेज चलने की कोशिश कर रहा था, और मैं थोड़ा सा पहले पहुँच गया था 15 मिनट वहाँ पे। तब तक तो सन वो तो अपने टाइम से ही आएगा। तो मैं जाके वहाँ बैठा रहा थोड़ी देर, और जब वो सनराइज हुआ, यकीन मानिए, मतलब वो मोमेंट था, मतलब ऐसे गूज बम आ गए थे मुझे, रोंगटे पूरे ऐसे खड़े हो गए थे, और ऐसा लग रहा था क्या ही देख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो जब तक नहीं आया सनराइज, और जैसे ही आया वो एकदम से स्पाइक किया, मतलब विदिन मतलब कह सकता हूँ मैं 2 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा सूरज दिख गया, इतनी स्पीड से ऊपर आया। अब पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया फाइंड आउट करने का, बट या दैट वाज अ थर्ड माय मोमेंट व्हिच वाज अमेजिंग। साक्षी, आपको मतलब क्या क्या चीजें ऐसी रही जो आपके ट्रैक में सबसे मेमोरेबल रही? Yeah, of course, it was snow. Actually, I want to see snow, कि मुझे देखना है snow कैसा है उधर, कैसा है. And secondary, snowfall of course. तो ये ड्रीम था मेरा कि स्नोफॉल देखना है। मैंने सनराइज का कभी सोच के मैं गई ही नहीं, मेरा था कि स्नोफॉल देखना है, जैसे मूवीज में देखते थे स्नोफॉल्स आ रहे हैं। कौन सा मूवी देखा था आपने? लकी मूवी। उसमें सलमान खान का एक सीन होता है जहाँ पे वो चारों तरफ उसके आइस होते हैं। सलमान खान फैन? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बट स्नो फैन कह सकते हैं। तो फिर वो स्नो फ्लेक्स जब हाथ पे आ रहे थे एंड वो सब जो बहुत अच्छा रहा। एंड फिर जब हम ऊपर जा रहे थे तो हमारे लिए थोड़ा टफ हो गया था, क्योंकि बहुत हैवी स्नोफॉल था। तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने गिव अप कर लिया था। आई थिंक हम लोग कुछ 24 मेंबर्स थे, जिसमें से 5 या 6 ऊपर गए थे, जिसमें से मैं एक अकेले लड़की थी। और ये इसलिए ऐसा था क्योंकि इनविंसिबल के इंस्ट्रक्टर और गाइड, आई कैन से लाइक आई वांट टू थैंक देम सो मच, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनने मतलब जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि अरे ये लग रहा है नहीं हो पाएगा, बोले चलिए आप चलिए उधर से, मतलब कोटे गाँव पे हमारे साथ आते हैं वो, काकू बोलते हैं, मतलब उनको काकू। हाँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लाइक ऐसा नहीं था कि उनको करना है, वो नहीं भी कर सकते थे, आई डोंट नो, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लाइक ऊपर तक वो ले गए एंड सीधे जब हम लोग वहाँ खड़े, वहाँ पे जब हम लोग गए सबमिट किया हमने, पर सिर्फ एकदम तेज तूफान है बर्फ की, और ऐसा है कि हर चीज़ उड़ रहा था, हमारे ग्लव्स उड़ जा रहे थे, सब कुछ। फिर भी हमने वहाँ पे अपना लाइक चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ स्नो था एंड काला काला था। बट वो भी एक था कि एक कैपेबिलिटी पता चली एज अ गर्ल, अगर मैं बात करूँ तो ये कैपेबिलिटी पता चली कि इतना कैसे कर लिया मैंने, मतलब ये कर लिया मैंने, अब बस अब यहाँ से स्टार्ट ट्रैक। So I can say it was my dream to see. So my dream was completed with Kedarkanta. It was in January, right? Yes. You January. did in February? No, I also Did in January? yeah, I also Okay. But I think you also did in January. So I did it thrice actually. मतलब But मैं how many times you participants के- submitted? 2 times actually. हाँ, so like last जो मेरा मतलब फेब के बाद अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, so at that time the weather was मतलब very harsh. It was January or February? It was February. Yes. Yeah, like end of starting of February only. So जब मैं तब मतलब हम जैसे ही KBC पहुँचे, so it started snowing. Yes. And मतलब वो स्नो गिरा, मतलब भरपूर गिरा, फिर वो बंद ही नहीं हुआ। एंड स्टिल मतलब हम जब ऑलमोस्ट 2-3 बजे के आसपास जब हम उठे, हमारा वेकअप कॉल हुआ, बट अगेन दैट टाइम ऑल्सो स्नो जो है वो गिर ही रहा था। सो द इंस्ट्रक्टर टोल्ड मतलब फॉर दिस सेफ्टी कि कोई भी नहीं जा रहा है, एंड आप इनविंसिबल मतलब आपने केबीसी का बेस कैम्प देखा तो द फाइनल बेस कैम्प इज आवर्स, Yes. उसके ऊपर कोई बेस कैम्प नहीं है। Yes. ओके, सो इनविंसिबल का जो केबीसी का बेस कैम्प है दैट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो वी यूजुअली इनिशिएट द समिट पुश। तो तब वी वेर द वन, फिर बाकी वॉकी के साथ में जो बाकी वाले बेस कैम्प के लोग थे उनके साथ में कनेक्शन बना, उनके साथ में बात हुआ, लेकिन उस समय वी कांट मतलब गो, सो वी वेटेड
सो तब स्नोफॉल थोड़ा कम हो चुका था. सो अगेन रूट ओपन करना, बिकॉज अगेन जब भी कोई भी मतलब फ्रेश स्नोफॉल होता है उसके बाद में यू नीड टू गो एंड ओपन द रूट. यस यस आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा राइट कि देयर इज अ Yes. स्पेसिफिक Trail. ट्रेल Yes. टिल द समिट. मतलब बाकी रास्ते के लिए तो मल्टीपल ट्रेल्स है, फॉर द समिट देयर इज ओनली वन Yes. ट्रेल. One Only trail. one. आप Yeah. जाते भी उसी रास्ते से हो, आते भी आते वही भी. रास्ते से हो. सो देन दी मतलब आई वाज आल्सो अलोंग विद द सीनियर इंस्ट्रक्टर. हम वो ट्रेल के ऊपर गए, हमने धीमे धीमे क्लाइंब जो है शुरू किया. जैसे ही हम जो मैगी पॉइंट की अगेन हम बात करते हो, तो आप देखते हो कि जो समिट होता है उससे जस्ट पहले एक मैगी पॉइंट है, Yes. पॉइंट आता है. फ्रॉम वेयर यू कैन सी दी समिट, और जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग गिव अप भी करते हैं. Yes. हाँ, Exactly. ज़्यादा Yeah. लोग. सो वहाँ तक हम पहुँचे एंड देन जो विंड गस्ट था वो आना शुरू हुआ. Yes. सो आपको पता ही है Yeah, जिसने I सुबह का जो experienced एक्सपीरियंस किया हो कि मतलब इट इज़ अगेन हल्का हल्का स्नोफॉल चल रहा है, पूरी रात स्नोफॉल हुआ है. Yes. एंड मतलब अगर मैं ठंड की बात करूँ, सो जब स्नोफॉल हो रहा है, जब मतलब स्नो गिर रहा है, तब आपको ठंड महसूस नहीं होगा. लेकिन एक बार जब स्नो गिर रुक गया जाता है, है. वो ख़त्म हो गया है, फिर जो हवा आती है God. फिर इट इज़ लाइक कि वो स्नो स्लाइड वाला चीज़ है पर वो पूरे बॉडी में हो रहा है. मतलब इट इज़ चिलिंग. Right. बहुत ही मतलब कोल्ड वेदर हो जाता है उस समय, एंड इट वाज लाइक बहुत ही हैवी विंड वहाँ पे चल रहे थे उस समय. सो जो मैगी पॉइंट जो पूरा का पूरा वो बना के रखते हैं वो लोग, वो भी काफ़ी मतलब डैमेज हो चुका था. और देन वी Okay. डिसाइडेड कि वी वोंट गो फॉर दिस समिट. ओके, काफ़ी सारे फिर पार्टिसिपेंट्स थे हु वर ओवर एक्साइटेड अगेन, क्योंकि काफ़ी लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है और समिट उनको करना रहता है बिकॉज दे आर गोइंग टू सी दी सनराइज. बट अगेन वेदर ऐसा था ही नहीं कि उनको सन भी दिखे, मतलब सनराइज उनको एक्सपीरियंस हो. दैट्स देन वी डिसाइडेड फॉर द सेफ्टी कि हम लोग डाउन होंगे वापस. हाँ, ये फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स के लिए ये चीज़ काफ़ी बार वो हो जाती है, क्योंकि लाइक वो उसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है. वो बड़े हैक्टिक शेड्यूल से बड़ी मुश्किल से मिली लीव्स को मैनेज Yes. करके जब राइट राइट. ट्रैक के लिए जा रहे हैं, एंड एट द टाइम ऑफ समिट व्हेन इट इज़ डाइसी, है ना, कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर मतलब वो क्लियर कट डिसीजन लेना मुश्किल लग रहा है, मुश्किल. तब वो ट्राई वही करते हैं कि हम सबमिट Yes. करें. लेकिन कभी कभी वो अनसेफ हो जाता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है. Yes. Exactly. डेफिनेटली उसकी वजह से थोड़ा वो रहता है. Mhm. मतलब ओवरऑल कंपेयर टू अदर ट्रैक्स, केदारकांठा हल्का सा लाइक लेंदी है इन टर्म्स ऑफ Of डेज, course. Mhm. नाइट्स वहाँ पर ज़्यादा है. इसके साथ साथ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फील कि जो केदारकांठा को यूनिक बनाती है? जैसे इन्होंने बताया स्नो एक्सपीरियंस इज दैट, वो सनराइज का व्यू है, दैट इज वन अदर थिंग. लाइक व्हाट डू यू थिंक कि इसके साथ मतलब यू कैन आल्सो लुक एट द होल शेड्यूल, यू कैन आल्सो लुक एट द लाइक ऋषिकेश एंड द थिंग. सो स्पेसिफिकली काफ़ी कम ट्रैक जो मतलब ऐसे रहते हैं कि जो आपका एक एक्सपीडिशन वाला एक फील देता है. ओके, इवन इफ़ यू आर अ बिगनर और एक्सपीरियंस ट्रैकर, अगर आप केदारकंठा कभी भी जाएंगे ना, सो यू विल फील दी मतलब वो एक्सपीडिशन वाला फीलिंग. रीज़न बीइंग अगेन कि एक तो लंबा ट्रैक है तो वेदर कभी भी चेंज हो सकता है. ओके, सेकेंड थिंग एक टेरेन का जो चेंज है, मतलब यू इफ़ आई से जुड़ा का ताल, तो वो पूरा फॉरेस्ट ट्रैक है आपका. पहले दिन का जो ट्रैक है दैट इज़ मतलब प्रॉपर फॉरेस्ट ट्रैक. सेकेंड डे का भी ऑलमोस्ट हाफ ट्रैक जो रहता है वो आपका फॉरेस्ट ट्रैक ही रहता है. बट देन यू गो तो आपको प्रॉपर वो जब ट्री लाइन खत्म हो जाता है, अबो यू आर गोइंग लाइक 10,000 फीट, तो आपको मतलब पेड़ थोड़े कम हो जाते हैं. ओके, एंड यू सी ओनली स्नो ऑल अराउंड यू. ओके, आपको पूरा का पूरा रेंज दिखता है, माउंटेन रेंज दिखता है वहाँ का. सो दैट इज़ समथिंग जो हर एक ट्रैक में हमको देखने नहीं मिलता इजीली. देन ऑल्सो कि इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ यू करते मीन टू हैं. से द समिट एक्सपीरियंस है इस Yes, ट्रैक में. सो ओवरऑल ट्रेल एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी कम ट्रैक में ऐसा देखने को मिला है. Yes. एंड ऑफ कोर्स दी सनराइज दैट इज़ द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट मतलब केदारकंठा के लिए, और वही उसको एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस देता है, दी सनराइज पार्ट. एंड ऑफ कोर्स मतलब जो पूरा का पूरा रूट है. ओके, एक और भी चीज़ जो मुझे ऐसा स्पेसिफिकली लगता है कि बीइंग मतलब अगर दूसरे ट्रैक्स की बात करूँ तो मोस्टली हर एक ट्रैक में आपको इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है ना, उसकी वजह से यू आर नॉट टोटली कनेक्टेड विद द नेचर. यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, सो यू आर एक्सपीरियंसिंग एवरी मोमेंट. Yes. मतलब आप Exactly. जब जुड़ा का ताल जा रहे हो तो यू आर कनेक्टिंग विद द इंस्ट्रक्टर. आप पूछ रहे हो कि उनको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे है, फ्लोरा एंड फौना के बारे में आप Yes. ज़्यादा अच्छे से जानते हैं. और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि केदारकंठा ज़्यादा फेमस भी हुआ है बिकॉज लोगों को पता है वो जगह के बारे में, उसके आसपास की रीजन के बारे में. जियोग्राफी, फ्लोरा एंड फौना हो गया, आसपास के जो फेमस ट्रैक्स है वो सारी चीज़ें हो गई. सो दिस आर दी थिंग्स आई थिंक कि जो उसको ज़्यादा फेमस बना रहे. So, Sakshi, like you also like would have got some time in Haridwar and Rishikesh.
Like how you spend that time? एक्चुअली हरिद्वार जिस दिन हम आए थे उस दिन हम लोग मतलब जितने क्या क्या फेमस है तो हमारे होटल एक्चुअली हर की पौड़ी के थोड़े पास था जितना हम्म, मुझे याद है, तो हम लोग हर की पौड़ी गए थे। फिर वहाँ पे हमने पूरा टाइम वहीं स्पेंड किया, हमने गंगा आरती देखी और वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग वगैरह भी किए, फोटो सेशन ऑफ कोर्स, एंड आसपास में और भी जगह लाइक गंगा वगैरह हमने एक्सप्लोर किया। तो हमें लगा कि या वो डे भी हमने पूरा अच्छे से यूटिलाइज किया। तो या दैट इज ऑल्सो आई कैन से चेरी पिक। The new addition in this track is this one extra day for Mhm. Rishikesh. I think it is a boon for all those people who Mhm. are like real adventure seekers or the thrill So seekers. सो फॉर मी मतलब अगर मैं ऋषिकेश फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अगेन कि अगर आपको ऋषिकेश एक दिन में हमने जो एड ऑन किया है वो कैसे घूम सकते हो आप। सो माय पर्सनल ओपिनियन है यू स्टार्ट योर डे विद रिवर राफ्टिंग। Exactly. आप रिवर राफ्टिंग से शुरू कीजिए। Okay. ओके आपकी थकान जो है इतने दिनों की ट्रैक की वो सबसे पहले चली जाएगी। निकल जाएगा। ओके सो दैट इज द फर्स्ट सजेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव कि आप रिवर राफ्टिंग से शुरू कीजिए। यू कंप्लीट योर रिवर राफ्टिंग बाय 7 और 8। ओके आराम से आप कर सकते हो। 1.5 आवर का रिवर राफ्टिंग रहता है वहाँ पे यूजुअली। उसके बाद में यू लाइक अगेन गो टू योर होटल, यू कैन फ्रेशन अप, आप आपका ब्रेकफास्ट ले सकते हो वहाँ पे। उसके बाद में जो है यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग नाउ। अगेन फर्स्ट थिंग अगर आपको एक्टिविटी में बंजी जंपिंग कर रहा है यू फिनिश दैट ऑल्सो। सो बाय 10 o'clock जो है वो आप फ्री हो जा रहे हो आपके एडवेंचर एक्टिविटीज से। उसके बाद में द फर्स्ट थिंग मतलब विच आई प्रीफर टू गो दैट इज द बीटल्स आश्रम। यस Yes, सो yes. बीटल्स करके एक बैंड Yes, है, yes, वेरी yes. पॉपुलर बैंड। उनका आश्रम मतलब अभी बीटल्स तो नहीं ऑफ कोर्स बट उनका एक आश्रम बना हुआ है Yes. ऋषिकेश में, दैट इज़ वेरी फेमस आश्रम और वहाँ पे कैफ़े भी है। ओके सो वहाँ पे जा सकते हो आप बीटल आश्रम। यूजुअली व्हाट आई डू इज़ कि जैसे मैंने आपको बताया कि द फर्स्ट पार्ट आई डू मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आई गो टू बीटल आश्रम। ओके वहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठता हूँ आराम से बिकॉज इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस ऑल्सो। उसके बाद में आई गो टू अ कैफ़े नियर बाय टू लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला फिलहाल के लिए कुछ शायद 1 या 2 साल के लिए अभी बंद है Yeah. बिकॉज ऑफ द रिनोवेशन वर्क गोइंग ऑन। सो उसी के पास में एक फ्रीडम कैफ़े करके है, इफ़ यू माइट हैव हर्ड, दैट इज़ अ वेरी फेमस कैफ़े नियर टू द बैंक ऑफ गंगा। सो वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे यू कैन हैव योर अगेन लंच। ओके सो अगेन ऋषिकेश भी जो है इट इज़ सिमिलर टू कसोल, वहाँ पे काफ़ी कैफ़े कल्चर जो है काफ़ी फेमस है। देयर आर सो मैनी गुड कैफ़ेज। दिस फ्रीडम कैफ़े पर्सनली मैं जाता हूँ इसलिए मुझे पसंद है। देयर इज़ ऑल्सो दिस Beatles Cafe, 1950s Beatles Cafe, near to our hotel if you have been to Rishikesh. So this is the first half. उसके बाद में जो है लंच ऑलमोस्ट 2-3 बज जाते हैं मुझे। देन व्हाट आई डू इज़ अगर मेरे पास टाइम है ज़्यादा तो मैं नीलकंठ जाता हूँ। नीलकंठ इज़ कंपेरेटिवली फार फ्रॉम दी Rishikesh, main town? या मेन टाउन से वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है। शिवपुरी के पास में ही है वो द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिवर राफ्टिंग स्टार्ट्स। सो नीलकंठ आप जा सकते हैं। नीलकंठ जाके आप इजीली वापस आ सकते हैं। यू हैव इनफ So टाइम। Nilkant is just a temple और कोई waterfall या cave वगैरह भी है सो वहाँ पे? बोथ थिंग है, वहाँ पे एक टेम्पल भी है और उसके पास में वाटरफॉल भी है। सो दोनों चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके इट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ रॉ प्लेस। लोग वहाँ पे तीर्थस्थल मतलब कह सकते हैं वहाँ का लोकल। वहाँ पे लोग काफ़ी जाते हैं और मानते भी बहुत है। ओके सिंस मतलब गंगा वाला पूरा रीजन जो है वो महादेव वाला रीजन ही हम कह सकते हैं और पब्लिक को वहाँ पे जाना काफ़ी पसंद आता है। ओके उसके बाद में अगेन जो शाम की जो आरती है, सो देयर आर 2 प्लेसेस ऋषिकेश में। अगर आपको शाम की आरती एक्सपीरियंस करनी है तो देयर आर 2 प्लेसेस, वन इज त्रिवेणी घाट ओके Yes. एंड दैट सेकंड इज शत्रुघ्न घाट। दोनों का अपना अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं त्रिवेणी घाट की बात करूँ सो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दी होल मतलब ग्रैंड आरती ओके सो आप त्रिवेणी घाट जा सकते हैं। त्रिवेणी घाट पे बहुत ही बढ़िया आरती होती है और प्लस पॉइंट ये कि जैसे ही आरती खत्म होती है तो वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे का हाँ, भजन होता है, Yes. भजन कीर्तन होता है। सो मतलब काफ़ी सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी में एकदम खो हो के जाते हैं। हाँ सो यू विल फील अ वेरी पॉजिटिव एरा ओवर देयर और ओवर देयर। और दूसरा है शत्रुघ्न घाट। सो शत्रुघ्न घाट अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेस कि जहाँ पे पब्लिक कम रहती है लेकिन आरती जो है वो काफ़ी पीसफुल मतलब पूरा का पूरा आप आरती अगर आपको अच्छे से देखनी है सो आप शत्रुघ्न घाट जाके देख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ मतलब बेसिकली आई गो Like टू that one day can be planned वन for डे कैन बी Rishikesh. प्लान या जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें कर सकते हो। Just a raw question. Like generally, like I'm like 100% confident on this, but it is not just in the perspective podcast also. जो भी ग्राउंड कैंप्स रहते हैं मतलब कि ग्राउंड कैंप्स मतलब हाइट की वजह से कंपैरिजन में जो लो हाइट पे रहते हैं उस हर जगह पर हमारी यहाँ की कुक की टीम वर्क करती है। Yes. इन केदारकांठा इट इज नॉट दैट।
केदारकांठ हैज अल्टीट्यूड ट्रैक, सो वहाँ पर जो कुक वर्क कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मनाली से आते हैं या फिर Local अलग person. रीजन से आते हैं. हम्म. दैट इज नॉट द रेगुलर टीम विच इज वर्किंग एट ऑल अदर आवर कैंप साइट्स. सो आपका रिव्यू कैसा था? लाइक हाउ वाज दैट ओवरऑल? लाइक डू यू थिंक कि उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो लाइक चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं विथ ट्रैकिंग पर्सपेक्टिव? लाइक अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो कहीं भी ऐसा कुछ मेरे को नहीं पर्सनल ओपिनियन लगा. मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा. मे भी इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि हम इतना ट्रैकिंग करके जाते थे मे बी. ठंड में और इतनी जोरों की भूख लगी होती थी. और क्या खाने की खासियत है, वो गरम गरम रहता था एकदम एकदम हाँ. यू नो जैसा आपको चाहिए एकदम. और इतनी ठंडी में इतना गरम खाना जब आप खाते थे ना, तो ऐसा लगता था बस खाते ही जाए, इच्छा ही नहीं भरती थी. क्योंकि वो और साथ में टेस्ट भी रहता है, तो नो डाउट. तो खाने को लेके मेरे को तो बिल्कुल ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है कि, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहूँगा मॉडिफाई हो, बिकॉज ऑलरेडी इतना अच्छा है, तो उसमें कुछ मेरे को वो नहीं है. बट डू यू थिंक व्हेन दे स्टार्ट द समिट पुश कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि जो लोगों को और एनर्जी लाइक So usually we provide them soupy things. दलिया. हाँ, दलिया हम प्रोवाइड करते हैं, रीज़न बीइंग कि एनर्जी के लिए ही. ओके, काफ़ी सारे लोगों को नहीं, मतलब थोड़ा दलिया उनका रेगुलर Actually, मील्स नहीं रहता है. yeah. या सो वो एक चीज़ रहता है. लेकिन अर्ली मॉर्निंग वी कैन नॉट गिव एनी, मतलब कुछ हैवी ब्रेकफास्ट भी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते. सो मतलब इफ देयर इज एनी सजेशन, सो वी कैन ऑब्वियसली अडॉप्ट दैट. बट let us talk about mistakes that people generally make in this track. Okay, like Mhm. something is definitely like if you go to any mountain, then definitely if you are a beginner especially, so when once you have that experience, you definitely hit on something. Yes, I made this mistake, this was my mistake, and this can be corrected when I go on the next track. Akash, do you think anything was that something like that, like in your experience? In my experience, I don't think like I missed anything, because yeah, definitely some of my friends had missed something. Like they just forget their spikes somewhere, and then it was very difficult. Like you mean to say they lost it or they Yeah, left they in lost the tents? it. They lost it actually. Oh. They don't care about their things, and just lost it. And that was very actually hilarious, because it was very difficult. क्योंकि क्या होता है कि स्किड बहुत करता है वो. जब एक बार बर्फ में आप पैर पड़ेगा, बहुत जोरों का स्किड करता है, तो एक वो स्पाइक्स जो रहता है ग्रिप बनाता है. तो मेरे हिसाब से एक मिस्टेक लोग कॉमन ये करते हैं कि बहुत ही लाइटली लेते हैं चीज़ों को, कि जो चीज़ें उन्हें कैरी करनी चाहिए उसको वो ध्यान नहीं रखते हैं. और क्योंकि क्या होता है, स्पाइक हमें स्टार्टिंग से पहन के नहीं चलना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पत्थर मिलते हैं प्रॉपर, वहाँ बर्फ नहीं होती है, तो पत्थरों के ऊपर वो जो स्पाइक्स पहनेंगे तो वो स्किड करेगा. तो इसलिए स्पाइक्स हमें बैग में रख लेना होता है, या फिर साथ में अपने कैरी करके जाना होता है. बट समटाइम्स उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत ही हल्के में लेके कि चलो इससे क्या ही है, और भूल जाते हैं. तो ये एक मिस्टेक मेरे एक दोस्त ने की थी. वो तो उसको बनाओ कि ऊपर जाके गाइड के पास एडिशनली उन लोग रखे रहते हैं बैग में, इन फ्यूचर किसी को कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए. तो उसने उनको दे दिया था, तो हेल्पफुल हो गया. नहीं अदरवाइज उसको वहीं बैठना ही पड़ता. ट्रैकिंग हम लोग करके आते, वो वहीं इंतजार करता हमारा, और कोई ऑप्शन नहीं था. ये था एक. Sakshi, you think like you made any mistake during the trek in preparation, in packing, and anything like in the whole experience? इन प्रिपरेशन तो मैंने ऑफ कोर्स इनविंसिबल का एक वीडियो है जो यूट्यूब पे है, जिसमें वो सब अच्छा, आपने देखा है वो? Yes. Of course, it is very like I think it was very useful for me when I planned for packing and all. So I took everything almost, but I think that was over. Like like that when I going for the summit. So that time there मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, एंड स्नोफॉल तो हो ही रहा था. तो हम लोगों ने मतलब 3-4 लेयर्स कर लिए थे कि वो होगा. लेकिन जब हमने स्टार्ट किया चलना, तो कुछ देर बाद फिर दम घुटने लगा इधर की. मतलब ये हमने स्कार्फ भी पहन रखा था, एंड 3-4 लेयर्स लगा रखे थे. तब हमारे साथ जो गाइड थे उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप सिर्फ 2 लेयर रखो, बाकी सब निकाल दो, क्योंकि आप जब करोगे, आप चलोगे तो आपको गर्मी लगेगी. तो इन चीज़ों का थोड़ा मुझे लगा कि ध्यान देना चाहिए कि जब हम चलेंगे तो ऑफकोर्स वो. और ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ग्लिटर ऑल्सो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब स्नोफॉल में चढ़ रहे थे तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जैसे आपने बोला कि फ्रेश बर्फ रहता है, तो रास्ते हमें नहीं दिखते. तो उस टाइम पे थाइज मेरे पूरे अंदर चले गए थे, इतने थे. तो हमारे थाइज हम लोग ऐसे जा रहे थे, तो बर्फ यहाँ तक था. आई वॉज नेवर फॉरगेट दैट थिंग कि यहाँ तक था. एंड यहाँ से निकलने में हमें जो हमारे साथ वो डंडा हमने लिया था. अच्छा हाँ, डंडा हमेशा मुझे लगता है कि बैम्बू का ही लेना चाहिए, क्योंकि दैट इज वेरी रफ एंड टफ, आई कैन से, एंड वेरी यूजफुल कंपैरेटिव
टू अनदर थिंग, बिकॉज मेरे फ्रेंड जो लोग थे वो लोग जो ट्रैकर का आता है ना वो वाला वो लिया था, उनका ट्रैकिंग टूट, पोल या यस उनका वो टूट गया था। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे इनविंसिबल के, उन्होंने स्पेसिफिकली सबको बोला हुआ था कि आप बैम्बू ही लेना, तो हम लोग बैम्बू वहाँ से रेंट करके ही ले गए थे ऊपर, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू सबमिट। सो इन अ वे इसका लाइक एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखा जाए फिर भी ये बहुत अच्छी चीज है इफ यू आर यूजिंग दैट बैम्बू Yes. वाला स्टिक, यस है ना, बिकॉज Exactly. लाइक क्रिएटिंग लाइक मैन्युफैक्चरिंग दैट लाइक मेटल स्टिक जिसको हम माइकिंग स्टिक्स बोलते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग इट इज लाइक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्स, है ना। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर, रिस्पॉन्सिबल हाइकर, आई थिंक वी शुड गो फॉर दिस। यस सो व्हाट वी हैव डन इज एट द कोटगांव बेस कैंप, आई थिंक आपने तो एक्सपीरियंस किया होगा। सो कोटगांव के जो बेस कैंप है वहीं पे हमने काफ़ी सारे यस बैम्बू लगा जो रखा है। बैम्बू स्टिक्स है वो रखे हुए। सो काफ़ी वो बैम्बू स्टिक्स जो है वो भी पहले कोई ट्रैकर था जो वहाँ से लेके नहीं हाँ। गया। सो व्हाट वी डू इज़ कि वहाँ से हम लोग स्टिक प्रोवाइड करते हैं, ओके। और इफ़ इन केस अगर कोई नहीं लेके जा रहा है तो बीच से उनको फिर लेना पड़ता है, दैट दे नीड टू इधर मतलब बाय करना पड़ता है उनको। यस एंड देन अगेन जब वो वापस आ रहे हैं तो दे पुट दैट हियर। सो अगला कोई भी बैच आ रहा है और उनमें किसी को रिक्वायरमेंट तो दे कैन टेक इट फॉर देमसेल्व्स। सो यू क्रिएटेड लाइक पॉट काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ पे सभी लोगों ने अपने बैम्बू स्टिक्स रखे हुए विच कैन बी रीयूजेबल। यस सो It एक is. बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो इसका यही है कि ये रीयूज हो सकता है हम्म। विथ ऑल दी लाइक फेलो ट्रैकर्स। Mm-hmm. We True. don't Do you need think like it comes to common mistakes? Do you have something in mind? सो फॉर केदारकंठा पर्सपेक्टिव कुछ कुछ लोग जो है ना वो सनराइज को देख के ओवर कॉन्फिडेंट फील हो जाते हैं, मतलब कि केदारकंठा जा रहे हैं तो हम लोग सनराइज देखने जा रहे हैं, बट इज वो ये नहीं देख रहे कि दैट इज अ 4-day ट्रैक दैट यू Yes. नीड टू डू, ओके। और काफ़ी सारे लोग जो है वो अगेन बीइंग अ वेरी पॉपुलर ट्रैक रील्स देख के काफ़ी आते हैं, Exactly. और रील्स में काफ़ी लोग जो है वो एकदम मतलब वो बॉडी वगैरह बताने वाला सीन रहता है। सो दो चार चीज़ें रहती है जो मुझे पर्सनली लगती है और हम ब्रीफिंग में भी काफ़ी बार बताते हैं कि यू शुड पैक वाइजली, ओके। जैसे मैम ने बताया कि जब आप ट्रैक पे जा रहे हैं सो तब लेयरिंग कैसे करना है, बिकॉज अगेन वो एक लंबा ट्रैक है और तब आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है। सो यू शुड नॉट पुट लाइक मोर देन 2 layers, ओके। Yes. यू कैन जस्ट पुट लाइक सिंपल लेयर और उसके ऊपर आप फ्लीस जैसा कोई मटेरियल डाल सकते हो, ओके। एंड विद टाइम जो है आपको शायद फ्लीस भी निकालना ही पड़े, Yes, correct. ओके, बिकॉज अगेन वो डे टाइम जैसे जैसे हो रहा है, दोपहर जैसे जैसे हो रही है, ओके। सो आपको वो भी उससे भी एग्जॉशन फील होता है। उसके बाद में स्पेसिफिकली मैं मतलब हर एक पार्टिसिपेंट्स को ये बताता हूँ कि हाइड्रेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है चीज़ों में, ओके। मील ऑफ कोर्स दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब काफ़ी लोग मील जो है वो भी स्किप Skip कर देते करते हैं, हैं। ओके। एंड ओवर पैकिंग की अगर मैं बात करूँ तो बीइंग अ 4-day ट्रैक काफ़ी सारे लोग कैसे कर रहे हैं ना कि दे आर पैकिंग टू मच फॉर दी लाइक बैकअप का भी बैकअप ले रहे हैं Yes. Right. जिसका रिक्वायरमेंट इतना नहीं है। Yes, Right. correct. सो इफ़ यू नीड फोर टी शर्ट, पर्सनली मेरी अगर मैं बात करूँ सो आई यूजुअली कैरी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ टी शर्ट्स। मैं कभी ट्रैक एक्स्ट्रा नहीं लेता, मतलब आपका जो ट्रैक है, ठीक है, अगर बहुत हैवी वेदर है तो आप एक्स्ट्रा शायद कैरी करिए, बाकी आपका 1-2 ट्रैक अगर आप लोगे तो आपको 4 day का ट्रैक, मतलब यू कैन रिपीट योर ट्रैक फॉर 2 days, Yes. ओके। एंड सॉक्स ऑफ कोर्स, Hmm. सॉक्स जो चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा लेनी है वो लोग नहीं ले रहे, ओके। सो सॉक्स इज समथिंग जो कैसा भी वेदर है, ओके, इफ इट इज़ क्लियर सनी तो भी आपको सॉक्स जो है वो रेगुलरली चेंज करने चाहिए, Yes. ओके। रात को आपको जो है थोड़े मोटे जो वुलन सॉक्स रहते हैं वो आपको पहन के सोना चाहिए। स्पेसिफिकली रात को काफ़ी लोग जो रहते हैं उनको आदत नहीं होती बीइंग, मतलब हम सभी ऐसी मतलब एनवायरनमेंट में रहते हैं कि जहाँ पे हमको एसी करके सोने की आदत है, ओके। सो कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे लोग जो है रात को लेयरिंग करके नहीं सोते, एंड जब वो नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं तो इधर वो बीमार हो जाते हैं, ओके। पानी अगर वो नहीं पी रहे तो उनको डायरिया का प्रॉब्लम इजीली मतलब हो जाता है, मील अगर स्किप करते तो भी। सो दिस आर द कॉमन थिंग्स दैट आई पर्सनली Acclimatation related या issues. एक्लिमेटाइजेशन रिलेटेड इश्यूज। Good. ट्रैक्स में जनरली काफी कुछ चीजें ऐसी भी रहती हैं जो मतलब फनी सी लगती है, खासतौर से कुछ पार्टिसिपेंट्स या फिर और भी जो लोग आ रहे हैं, है ना, जिनको देख के भी कुछ मतलब फनी सा फील होता है। आकाश, डू यू थिंक एनीथिंग लाइक यू लाइक हैव सम मेमोरीज लाइक I have a दैट? lot of memories. I'm thinking what I said. So yeah, one memory is I remember like midnight में जब हम लोग like जो बेस कैंप होता है हमारा लास्ट बेस कैंप होता है पीक से पहले जस्ट वाला। सो वहाँ पे जब हम रात में सोते हैं कैंप के अंदर और रात में सुबह 2 बजे उठना होता है तो हमें आराम से जल्दी सो जाना होता है और सर तरफ पूरा आईसी होता है। तो अभी क्या था हमारे कैंप के अंदर वो एक कैंप में 3 लोग को ऐसे सोना था स्लीपिंग बैग में। अभी स्लीपिंग बैग में आदत किसी को नहीं है सोने की, घर पे तो रजाई ओढ़ के सोते हैं। अब स्लीपिंग बैग में क्या था कि
जैसे नहीं है तो खुद को ही लॉक करना होता है चैन से ही पूरा प्रॉपर, तो ऐसे ही लॉक करके सिर्फ आपका इतना मुंह बाहर रहेगा और सुनाता। अब उसी में हमारे साथ जो पार्टनर लेटा था उसको करवट बदलने की कुछ ज्यादा ही आदत थी, और उसमें क्या है ना कि यार हल्का सा हिलोगे ना तो इतनी तेज आवाज होगी ना, इतनी तेज आवाज होगी टेंट के अंदर ना। हाँ हाँ, टेंट के अंदर वो क्या होता है, पूरा प्लास्टिक बैग्स टाइप के होते, पूरे एकदम खस 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 करता ही रहता है पूरी रात भर आवाज वो। तो अगर कोई करवट बदल रहा था तो ऐसे आंख बंद करके ऐसा फील हो रहा था कि इसको बस ले जाके बाहर रख के आ जाए। तो ये एक वो था कि काफी लाइक अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि आदत नहीं होती है इस तरह सोने की। तो ये एक फनी मोमेंट था। बाकी तो फिर जब आप वहां जाओगे तो फिर आइस से खेलना, आइस मारना एक दूसरे को, और वो सब दैट सब फनी है वहां पे। मुझे सबसे फनी क्या लगता है पता है, हम्म। जब मैं कोई ट्रैक में जाता हूँ तो कुछ लोग आते हैं जो ओवर एक्साइटेड लोग आते हैं ना। Yes. ओवर एक्साइटेड मतलब कि मतलब एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊं तो केदारकंठा का फीस है दैट इज समवेयर अराउंड 10,000 11,000। तो 10,000 11,000 के ट्रैक के लिए वो 30-35,000 का तो शॉपिंग कर लेते हैं, Yes. है ना। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और फिर वो सारे मतलब डिकैथलॉन के ब्रांड एम्बेसडर बन के जब वो स्लोप पे चल नहीं पा रहे होते ना, That is the मतलब बिल्कुल नए शूज है, ट्रैक पैंट देखो केशुआ का, है ना, उनका अपर देखो केशुआ का, जैकेट देखो केशुआ का, गोगल्स भी वही लगा के रखे हैं और कैप भी वही है, लाइक पूरा मॉडल बन के आया है। And बट बीच में जाके सरेंडर हो जाता हाँ, है। बीच में जाके फिर है ना, कभी तो फर्स्ट सेकंड कैंप तक ही उनका वो एनर्जी हाँ डाउन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना एक्साइटमेंट हो शॉपिंग वगैरह चीज़ों के लिए है, जितना एक्साइटमेंट हो पैकिंग वगैरह चीज़ों के लिए, उतना कहीं ना कहीं थोड़ा इस तरह के Preparation. ट्रैक के लिए प्रिपरेशन के लिए भी लोगों को सोचना चाहिए, there है is ना। नॉट इन द सीरियस मैनर बट एटलीस्ट अगर 2 to 3 वीक का वो नॉर्मल जॉगिंग या वॉकिंग का भी रूटीन रखेंगे देन डेफिनेटली इट विल Yes. हेल्प। एंड देयर इज आल्सो वन मिस्टेक आई थिंक, जैसे आपने शूज़ का बात किया तो शूज़ का भी मैंने काफ़ी ये चीज़ का एक्सपीरियंस किया हुआ है कि नए शूज़ लेके जब कोई इस टाइप के ट्रैक में आता है जहाँ पे मतलब प्रॉपर आइज रहता है, तो शूज़ का कैसा रहता है ना कि अगेन आप कैसे भी शूज़ ले लो, थोड़े बहुत डार्क हो लाइक हार्ड हो ही जाते हैं। और जब वो नए नए शूज़ लेके आते हैं ओके, और जब पहले दिन फ्लेक्स करते हैं वो पूरा का पूरा कि भाई एकदम बन ठन के, फिर नेक्स्ट डे जब वो जा रहे हैं जुड़ा का ताल से केबीसी, तब वो शूज़ जो है वो उनको दिक्कत देना शुरू करते हैं, Yes. बिकॉज़ कोई भी नया शूज़ रहेगा वो उनको थोड़ा बहुत चुभता है। हाँ, और अगर आप ये तो ठंड में हो, वैसे हैकिंग के फील्ड में तो एक गोल्डन लाइन है, नेवर यूज द न्यू Yes. शूज फॉर अ Shoes. इम्पोर्टेंट ट्रैक, है ना। आप वैसे जा सकते हैं कोई ट्रैक के लिए बट यू शुड नॉट यूज द न्यू न्यू शूज। शूज़, यस Yes. एग्जैक्टली, सो दैट इज आल्सो अ मिस्टेक काइंड ऑफ मतलब व्हिच वी हम्म। पर्सनली थिंक, एंड वी हैव अ लाइक कैंपर स्टोर ओवर Yeah, like I our think base that camp. was best. Yeah. So here you can take the shoes. Okay, Yes. we have a very good quality of shoes over Yes, there it also. is. Yeah. So in the mistakes, Sakshi, do you have anything to share? Yes, I have did one mistake while submitting. That time I was supposed to had a sunglasses over me, but I didn't have that time. एक्चुअली हुआ क्या था कि हैवी स्नोफॉल था जब मैं गई थी, तो जब मैं सबमिट कर रही थी तो उस टाइम पे मेरे पास कोई ग्लासेस नहीं थे ओके जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके आइज से। तो वो जब स्नोफॉल आ रहा था तो वो पूरे मेरी आंखों पे आ रहा था एंड माई आइज वर सो हर्टिंग दैट टाइम। सो दैट टाइम आई रियलाइज कि एक ग्लासेस ज़रूर मुझे लेना चाहिए था जो मुझे स्नो से प्रोटेक्ट कर सके। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ मिस्टेक, दिस इज़ वेरी आई थिंक सिली मिस्टेक्स बिकॉज मैनी पीपल डिड नॉट बाय दिस। So एक नहीं, I think आपको always Yes, दो yes. glasses In carry the करने field चाहिए. of mountaineering and hiking, it is always like suggested that you always have 2 pairs of glasses whenever you are going for any snow trek. 2 because if one fails, okay, There the is a backup. second one. should be there. Yes. And many a times people also make mistake by keeping them somewhere in the hood or anything like without box. Yes. Right. Okay, so it You also just put a damages the box. glass. Okay, so I think that is also one of the important thing. One another thing that I really want to add on is acclimatization is super important, and in process of acclimatization sleep cycle is very important. So when you do not have enough sleep while you are traveling, many times people just spend times in playing games and Uno and this, like it is definitely it is worth making memories, but sleeping hours before the track That is very is important. important because at the altitude you do not get that much rest, है ना। कहीं ना कहीं आप 6 घंटा सोने के बाद भी थोड़ा सा एग्जॉशन तो रह ही जाता है। तो स्लीपिंग बैग में ये काफ़ी बार प्रॉब्लम जैसा आपने बताया ना कि होता है कि नींद नहीं आ रही है,
बट एटलीस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप आपके बॉडी को रेस्ट भी दे रहे हैं, बिकॉज काफ़ी बार कैसा होता है ना कि नींद नहीं आ रही, सो पीपल यूज टू गो इन लाइक फ्रेंड्स टेंट और वहाँ पे वो गेम खेल रहे हैं या जस्ट टू Yes. लाइक मतलब वो टाइम जो है टाइम उनको निकालने पास के करना लिए, है, हाँ। बट इट इज़ सजेस्टेड कि उस टाइम पे वो लोग जो है रेस्ट करे बॉडी को. अगर नींद नहीं आ रही है सो एटलीस्ट दे कैन ले डाउन, ओके दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेस्ट दैट दे कैन डू. और लेयरिंग अगर होगा तो आई थिंक नींद धीरे धीरे आ ही जाएगी. हाँ, धीरे-धीरे आ Yes. जाती है। हाँ, बट इफ दे आर कीपिंग देमसेल्फ एक्टिव तो उनका एनर्जी भी जा रहा है उसके अंदर, और नेक्स्ट डे का जो ट्रैक है वो शायद उनका अच्छा ना हो. Yes. सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग. Done. Thank you everyone for joining this podcast. Definitely, this will be very helpful for all those people who are actually planning for this track. Definitely, we will also share links of the related videos, like you shared that the packing video is very helpful. Yes. Similarly, we also have created one a video for the rental gears, which is available there Yes, at the yes. campsite. So that is also a very good video. And in the phase of preparation, I think in the coming time we should look forward to have some dedicated videos for acclimatization and layering especially. These are the some important aspects that every tracker or every mountaineer must learn from this. Same way, acclimatization is also one of the important topics. So this podcast will be definitely helpful for all those people who are considering doing Kedar, Kantha or similar kind of any track. Yes. And definitely it will draw some clicks from those people who already visited this track. Exactly. So thank you again for joining. It was a very short notice that we gave all of you, and including Bhati, he was on leave. Yes. So thank you for coming. Thank you for joining this podcast. Jai Hind. Jai Hind.